the front end of the app, we need these apps, softwares: Git, Flutter, Dart Engine, JDK, Android Studio, and Visual Studio Code. So first we have to open our browser and search for Git download. So we have to firstly download Git. And after downloading, we have to install Git. After all the files are extracted, we have to search for cmd and type git here. And if there is no error, Git is successfully installed on your computer. So the next step is to install Flutter. So we have to go to the website of Flutter, flutter.dev, and press on get started. And then we have to copy this code, git clone, and this repository link. After copying this, we have to go to our C drive and create a new folder named src. And in this folder we have to click shift and right click, and here you can see option of open PowerShell window. And paste the code. Hit enter. After running this command, the Git will install the Flutter in your system and clone the repository from this link. So after installing, you can see that 100% files are cloned in your computer. After this, we have to close our Windows PowerShell window, and you can see this source folder. Here is a folder created automatically, whose name is Flutter. And here you can see there are some files. You have to find this file flutter_console, and after clicking on this, you can see this window. And when you will write Flutter in this window, it will automatically install this Dart engine in your computer. So just wait for Flutter to install Dart engine. So what actually Dart does is, Flutter is not a programming language, it is a framework. But Dart is a programming language which allows Flutter to run properly. And why we are using Flutter instead of other languages? Because Flutter has lots of advantages. Like, you just have to write code once, and then you can compile it to any operating system like Android, iOS, web. Like, for example, you have an institute and you have to make an app for Android, iOS, and make a website for your institute. So what you will do most probably is first write code. Wait a second. You will first write code for Android and then make an app for that, and then you will again write a code for iOS,
and then make an app for that, and you will design a website. But in this Flutter, you just have to write code once, and you can compile it to make a website, Android app, an iOS app, or Google Fuchsia app for Windows, for Mac OS, and different platforms. It covers most of the major platforms. You don't have to worry. So just wait for this to install the Dart Engine. And after some time you will see the install Dart Engine on your computer after writing the command Flutter. And after that you have to write Flutter doctor. It will download some required data to run Flutter properly. And you are done with the Flutter part, and now we have to download Android Studio. So you can just go here. You saw this error. This will be fixed after installing Android Studio. So let's first this link will be provided in the descriptions. All the links used in here will be provided, like Git and Android Studio and Flutter. We will provide all the links in the description. Let's download Android Studio. You can read all these terms and conditions and mark this checkbox, and now we can download Android Studio. So what Android Studio do is allow you to write code for Flutter. So it's an IDE, integrated development environment, which allows to compile the code and write it neatly with Emmet abbreviations. Like it will boost your productivity for writing code. Android Studio को जो सेटअप है वो डाउनलोड हो गया है, और डाउनलोड फोल्डर्स में ये सेटअप मिल जाएगा. हम एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है. तो इस पे टिक लगाना ज़रूरी नहीं है. एक्चुअली एक वर्चुअल डिवाइस होता है. इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी कोड लिखोगे तो आपके पास एक मोबाइल की तरह एक डिवाइस बन के आ जाएगा, जिस पे आप टेस्ट कर सकते हो. आप अपने फिजिकल मोबाइल है जो आपका, उस पर भी टेस्ट कर सकते हैं, और आप इस मोबाइल पे भी टेस्ट कर सकते हैं. और एक चीज़ और, ये एंड्रॉयड स्टूडियो की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं. विंडोज 7, 8 और 10. उसके बाद 3 GB रैम, 8 GB रिकमेंडेड है, 3 GB मिनिमम है, 3 से कम नहीं होनी चाहिए. और उसके बाद 2 GB अवेलेबल स्पेस होनी चाहिए, वो तो सबके पास होती है. और चेक करना है कि आपके पास क्या वो है, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं आपके कंप्यूटर की. तो आप टास्क मैनेजर खोलिए. उसके बाद मोर डिटेल्स, और यहाँ पर एक परफॉर्मेंस टैब है. यहाँ पर आप देख सकते हैं i5 8th जनरेशन CPU है इस लैपटॉप में, और 8 GB रैम. ये ग्राफिक कार्ड है MX 130 NVIDIA GeForce. मिनिमम 3 GB होनी चाहिए. 8 GB में अच्छा से चलता है, 3 GB में बहुत मुश्किल से काम करता है एंड्रॉयड स्टूडियो. ये बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है. जब ये अपनी फाइल एक्सट्रैक्ट कर ले तो एंड्रॉयड स्टूडियो अपने आप ओपन हो जाएगा. यहाँ पर कर रहा हूँ मैं.
उसके बाद ये सेटअप विज़ार्ड है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड ही रखें आप। उसके बाद ड्रैकुला थीम है, ये लाइट थीम है। और ये कुछ फाइल्स है जो ये डाउनलोड करेगा, जैसे एंड्रॉयड एमुलेटर, एंड्रॉयड SDKs एंड प्लेटफॉर्म टूल्स वगैरह डाउनलोड करेगा ये बता रहा है मैं कि ये कहाँ से डाउनलोड कर रहा है फाइल्स सारी। तो हमने गिट डाउनलोड कर लिया, फ्लटर डाउनलोड कर लिया, डार्ट डाउनलोड कर लिया, JDK डाउनलोड करना है हमें अभी, और एंड्रॉयड स्टूडियो हमने डाउनलोड कर लिया। और एंड्रॉयड स्टूडियो एक बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, हम इसका अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, जो एक लाइट सॉफ्टवेयर है। पर आपको फिर भी एक बार एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना ही पड़ेगा। अगर उसके बाद आप अपनी सहूलियत के लिए विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास एक स्लो कंप्यूटर है तो। इतने हम हमारा JDK डाउनलोड कर लेते हैं। सो ये oracle.com पे JDK है। वैसे तो जो लेटेस्ट वर्जन है जावा SE 16 है, बट हम 16 डाउनलोड करेंगे, हम 8 डाउनलोड करेंगे। सो मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, JDK डाउनलोड। उसके बाद ये लिनक्स है, हमें विंडोज़ का चाहिए, मेरे पास विंडोज़ है, तो ये लास्ट में विंडोज़ X64 वर्जन है, मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। उसके बाद आपको oracle में लॉगिन करना पड़ेगा, आप एक नया अकाउंट बना सकते हैं, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। तो आपकी ईमेल पे लिंक आ जाएगा वेरिफिकेशन का। उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं। बाद जो आपने पासवर्ड और ईमेल भरा था उससे आप लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद ऑटोमेटिकली JDK डाउनलोड हो जाएगा, होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसने जो एंड्रॉयड स्टूडियो था वहाँ पर भी सब कुछ डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद फिनिश कर दें और आपको ऐसा कुछ यहाँ पर प्लगइन्स पे क्लिक करें। सिंपली प्लगइन्स पे क्लिक करने के बाद मार्केट प्लेस पे इंस्टॉल्ड पे ना हो, आप मार्केट प्लेस पे हो। उसके बाद आपको सर्च करना है डार्ट। ये डार्ट का जो फर्स्ट प्लगइन आएगा उसको इंस्टॉल कर लें और उसके बाद आएगा फ्लटर इंस्टॉल कर लें। और इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ ऑप्शन आ रही है रीस्टार्ट IDE की, तो अपना जो एंड्रॉयड स्टूडियो है उसको रीस्टार्ट कर लेंगे। और JDK डाउनलोड हो चुका है, JDK भी इंस्टॉल करना है हमने। The last one thing is हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल पाथ सेट करना पड़ेगा। और पहले आप C ड्राइव में जाएं और उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स को नाम का फोल्डर चूज करें। उसके बाद यहाँ पर सर्च करें जावा के लिए, मेरा जावा। उसके बाद आपकी यहाँ पर मेरे पास 2 वर्जन है, आपके पास एक होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक
फोल्डर मिलेगा बिन नाम का, बिन। और यहाँ पर जावा का कंपाइलर है, जो पाथ है ये वाले, एड्रेस बार पे क्लिक करो और ये पाथ हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें जाना है विंडोज़ पे, विंडोज़ का आइकन पे। उसके बाद सर्च करना है एनवायरनमेंट विद एडिट द एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। उसके बाद यहाँ पर एक एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की ऑप्शन है। ये जो ऊपर है ये यूज़र वेरिएबल्स हैं, इस नीचे वाले सिस्टम वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर पाथ मिलेगा, यहाँ पर आपको एक वेरिएबल डाटा ड्राइव नंबर ऑफ जैसे यहाँ पर एक पाथ मिलेगा, पाथ पे क्लिक करना है। उसके बाद एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर पहले ही कुछ बहुत सारे पाथ्स ऐड किए होंगे, हमें उनको कुछ नहीं करना है, हमें न्यू पे क्लिक करना है और जो आपने पाथ कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है और फिर से ओके कर देना है, फिर से ओके कर देना है। अब सब कुछ हमने इंस्टॉल कर लिया, हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो भी इंस्टॉल हो गया। अब एक बार लास्ट टाइम हमें जाना है वहीं पर सोर्स, फ्लटर और हमारा फ्लटर कंसोल जो कंपाइलर था उसे खोलना है, जो हमने पहले खोला था। और यहाँ पर हमें लिखना है एक बार फ्लटर डॉक्टर, और हमें अब एंड्रॉयड लाइसेंसेस चाहिए। तो यहाँ पर लिखा रहा है फ्लटर डॉक्टर माइनस एंड्रॉयड माइनस लाइसेंसेस। इसे कॉपी करके पेस्ट कर दें। ये वाली कमांड हमें दोबारा रन करनी है ताकि हम लाइसेंस एक्वायर कर सकें सारे। उसके बाद हमें सारे लाइसेंसेस एक्सेप्ट कर लेने हैं। वाई एंटर, वाई वाई सारे लाइसेंसेस हमने एक्सेप्ट कर लिए हैं। उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको दिख रहा होगा क्रिएट न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। उसके बाद ये एस डी के पाथ मांग रहा है, जो हमने फ्लटर कंसोल डाउनलोड किया था वही हमें सेलेक्ट करना है, सी। उसके बाद सोर्स एंड देन फ्लटर, इसको चूज करना है, नेक्स्ट। और यहाँ हमें अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। और कभी भी प्रोजेक्ट का नाम कैपिटल में नहीं होना चाहिए, कोई भी लेटर कैपिटल में नहीं होना चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए। जैसे कि मैंने बता रहा हूँ फॉर्म ऐप, प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ। और यहाँ है हमारा पैकेज नेम है, ये आप कुछ भी दे सकते हैं, एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए मुझे। यहाँ पर कॉम डॉट मैं दे रहा हूँ, कॉम डॉट ऋषि डॉट ऐप, कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद ये हमें जिस प्लेटफॉर्म के लिए बनाना है उस पर टिक करना है, एंड्रॉयड iOS, और फिलहाल में एंड्रॉयड और iOS के लिए बनाना है। उसके बाद फिनिश, ये ऑटोमेटिकली एक नया फिल्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। उसके बाद हमें यहाँ पर जो प्रोजेक्ट दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है और इस वाले फोल्डर को खोलना है। यहाँ पर हमें एक लिब नाम का फोल्डर मिलेगा, लिब। इसमें एक मेन डॉट डाट फाइल होगी जहाँ पर हम कोड लिखेंगे सर। और यहाँ ये एक डेमो फाइल दी हुई है, ये एक डेमो फाइल है, ये डेमो टेस्ट ऐप है। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल पे डेवलपर ऑप्शन ऑन करनी है और डेवलपर ऑप्शन के नीचे एक USB डीबगिंग होगी, उसे ऑन करना है। उसे ऑन करने के बाद आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर के साथ अटैच करें तो यहाँ पर आपको आपके मोबाइल का नाम लिखा आ जाएगा। और अगर जिन्होंने कंप्यूटर में चलाना है वहाँ के लिए यहाँ पर एक AVD मैनेजर का ऑप्शन है। उसके बाद क्रिएट न्यू वर्चुअल डिवाइस, और यहाँ पर एक मैं वर्चुअल डिवाइस चूज़ कर रहा हूँ, Nexus 5, नेक्स्ट। और यहाँ पर हमें एक सिस्टम इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी, कोई भी कर सकते हो आप, RQ, पाई, ओरियो, नॉगट। मैं नॉगट डाउनलोड कर रहा हूँ।
एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस इनेबल करने के लिए हमें पहले कंप्यूटर में वर्चुअलाइजेशन इनेबल करनी पड़ेगी। उसके लिए पहले हमें कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। और ब्लैक स्क्रीन आए तब हमें F10 क्लिक करना है। उसके बाद माउस काम नहीं करेगा, जो एरो कीज़ है उससे कंट्रोल करना है। उसके बाद सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। ऊपर जो टैब्स हैं 3 मेन, सिक्योरिटी एंड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के पे जाने के बाद सेकंड ऑप्शन है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, इसे इनेबल करना है। एंटर क्लिक करके उसके बाद इनेबल सिलेक्ट करना है। उसके बाद एग्जिट वाली टैब पे जाके एग्जिटिंग चेंजेस। एमुलेटर डाउनलोड होने के बाद हमने नॉगट वर्जन डाउनलोड किया था, इसे सिलेक्ट करने के बाद ये डिवाइस का नेम कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद वर्चुअल एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस क्रिएट होने लग जाएगा। इंस्टॉलेशन इनेबल करने के बाद हमें जो AVD मैनेजर था उसके साइड में एक SDK मैनेजर है, वहाँ जाना है। उसके बाद यहाँ SDK टूल्स पे क्लिक करना है और इंटेल X6 एक्सेलरेटर हेक्सम इंस्टॉलर पे क्लिक करके अप्लाई करना है। उसके बाद हेक्सम इंस्टॉलर इंस्टॉल हो जाएगा। हेक्सम इंस्टॉलर इंस्टॉल हो गया। अब जो AVD बनाया था हम उसे चला सकते हैं। स्टार्टिंग AVD रन हो रहा है। फर्स्ट टाइम ऑन होने के लिए कुछ टाइम लगेगा। AVD ऑन होगा और अब हम जो एक सैम्पल कोड है उसको रन कर सकते हैं। कुछ टाइम के बाद जो ऐप है वो हमारी वर्चुअल डिवाइस पे बिल्ड हो गया है और ये डेमो ऐप काम करता है। प्लस वाले काउंटर पे क्लिक करोगे तो ये जो नंबर है यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगा।